Dear children, welcome to all in English class. As we learnt about articles, especially indefinite article and definite article in previous lecture. Today we learn about verb, its kinds and forms of verb. Let's start. What is verb? A verb is a word used for saying about some person or thing. It is that part of speech which expresses an action or state of subject. बच्चों, यह पार्ट ऑफ स्पीच का वो अंश है जिसके द्वारा हमें कर्ता के क्रिया और स्थिति का पता चलता है. Dear children, the verb expresses an action done by the subject. For example, we play football. Here, play is verb because it shows the action done by the subject. What the subject is? Dear children, verb also expresses what the subject is. For example, India is thickly populated. Here, thickly is a verb because it expresses about the subject. What the subject possesses. Verb also express what the subject possesses. For example, my sister has a car. Has here is a verb. What happens to the subject? Verb also expresses what happens to the subject. For example, yellow colors fades away. Here fades is used as a verb. Now, and the last one is what is done to the subject. उस सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ है इसके बारे में भी हमें वर्ब ही बताता है, क्रिया ही बताती है. फॉर एग्जाम्पल, माई डॉग हैज़ बीन किल्ड इन एन एक्सीडेंट. तो हैज़ बीन हेयर इज ए वर्ब. नाउ डियर चिल्ड्रन, टाइप्स ऑफ वर्ब. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब: ट्रांजिटिव वर्ब, intransitive verb and auxiliary verb. Now, transitive verb, a verb which requires an object after it to complete the sentence is called transitive verb. ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं बच्चों जिसमें वर्ब को ऑब्जेक्ट की सहायता होती है वाक्य के सेंस, कंप्लीट सेंस बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज प्लेड द मैच, ही राइट्स द बुक. इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ब प्लेड एंड राइट्स डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस अनलेस देयर आर सम नाउन्स आफ्टर देम. बच्चों, इसमें ऊपर आप देख रहे होंगे, अगर मैच और बुक्स शब्द अंत में ना हो तो वाक्य की पूरी सेंस नहीं बन पाएगी वर्ब की सहायता से. Now, in the intransitive verb, there are some verbs which makes good sense by themselves. They are called intransitive verb. Such verbs does not need no object. जब बच्चों ऐसे वर्ब जिनकी सहायता, जो बिना ऑब्जेक्ट की सहायता से वाक्य की सेंस बना देते हैं, उन वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सन शाइन्स, द कैटल आर ग्रेजिंग. इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ब शाइन्स एंड आर ग्रेजिंग मेक गुड सेंस बाय देमसेल्व्स. ये अपने आप में ही वाक्य के पूरी सेंस बना रहे हैं. एंड देयर फॉर डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, और इन्हें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है. नाउ, ऑक्सिलरी वर्ब, दीज आर यूज टू फॉर्म ए टेंस ऑफ प्रिंसिपल वर्ब. बच्चों, इस प्रकार के जो वर्ब हैं वो हमारे टेंस को बनाने, प्रिंसिपल वर्ब के साथ टेंस बनाने के काम में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू होम टूडे, द बॉयज आर playing. In the above sentences, am and are auxiliary verbs because they are helping the principal verb go and play. बच्चों, प्यारे बच्चों, इसमें ऊपर जो गोइंग और प्लेइंग है ये प्रिंसिपल वर्ब है, और एम एंड आर जो है हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि ये टेंस को बना रहे हैं. जब हम टेंस करेंगे तो उसमें आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी. नाउ डियर चिल्ड्रन, फॉर्म्स ऑफ वर्ब. The principal part of verb from which all other forms or tenses can be formed are called the forms of verb. Dear children, there are three forms of verb: present tense first form, past tense second form, and past participle third form. Now dear children, let's learn about them. There are two types of verbs based on the forms of verb, that is strong and weak verbs. Let's study about first one, strong verbs. Strong verbs are those which form their past tense by merely changing the vowel in the present form without adding ed, d or t. We may also call them as irregular verbs. बच्चों, strong verb हम उन्हें कहते हैं जो present tense के simple verb में vowel दिए हैं उनको simple बदलने से past और participle form बनाते हैं. उसमें ईडी, डी या टी नहीं लगा होता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं.
इन तीनों की जो फॉर्म्स है वो तीनों ही डिफरेंट होती है और इन्हें हम इरेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल्स। रन प्रेजेंट फॉर्म है, रैन रन, स्विम स्वैम स्वम, सिट सैट सैट, स्पीक स्पोक स्पोकन। इसमें आप देख रहे होंगे कि वॉवल ही चेंज हो रहे हैं। ड्राइव ड्रॉव ड्रिवन, राइट रोड रिटन, कम केम कम, टेक टुक टेकन, रन रैन रन, बिगिन बिगेन बिगन, हाइड हिड हिडन। तो इसमें जो है ईडी डी या टी नहीं लगा है, बल्कि वॉवल्स को चेंज करके ही ये फॉर्म बदली गई है और इनका प्रयोग टेंसेज में यूज होता है, इसलिए इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नाउ वीक वर्ब्स। वीक वर्ब्स आर दोज विच फॉर्म their past tense and past participle by adding ed, d or t to the present with or without vowel changing in the body of the word. We may also call them as regular verb. बच्चों, इसमें जो प्रेजेंट फॉर्म में हमारे पास वर्ब दिया होता है, अगर उसके लास्ट में ईडी लग जाए या डी लगे या टी लगा के दूसरी फॉर्म में बदल दिया जाता है तो उनको हम वीक वर्ब बोलते हैं और रेगुलर वर्ब भी बोलते हैं। इसमें वॉवल को नहीं चेंज किया जाता। लेट्स टेक एग्जांपल्स। जंप जंप्ड जंप्ड। इसमें देखो ईडी लगा है दोनों में, पास्ट को और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए, तो इसलिए ये वीक वर्ब है और सिंपली इसमें वॉवल को किसी को चेंज नहीं किया गया है। प्ले प्लेड प्लेड, वॉक वॉकड वॉकड, स्किप स्किप्ड स्किप्ड, लिसन लिसनड लिसनड, लुक लुकड लुकड, पुश पुश्ड पुश्ड, क्लीन क्लीनड क्लीनड, कैरी कैरीड कैरीड, स्टे स्टेड स्टेड, मूव मूव्ड मूव्ड, कुक कुकड कुकड, टॉक टॉक्ड टॉक्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें ईडी लगा है या कॉन्सोनेंट बदला है मगर वॉवल नहीं बदला है, तो इनको हम वीक वर्ब भी कहते हैं और रेगुलर वर्ब भी कहते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट verbs, its kinds and forms of verb. Hope that you understand all about these. Dear children, there is a worksheet along with this video. Kindly solve the questions in the worksheet so that you can develop more understanding about the topic, that is verb and form of verbs. Thank you. Be happy and safe.